विचारों के लेवल पर एटलीस्ट कि फायर सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मैम आपसे ही शुरू करता हूं। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया कि आप इसके कॉज पर फोकस कीजिए। कॉज इन जनरल तो हमको यही समझ में आता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, घर में कुछ गैस की लीकेज हो गई, आग लग गई। अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की फिलहाल के लिए, यही कुछ कॉमन कॉज होते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और होता है जहां हमसे मिस होता है और हम समझ नहीं पाते इस चीज को? Actually, I am from academic background. I am from Indian Institute of Social Welfare and Business Management, where we are teaching advanced diploma in fire and industrial safety management. Now, we are doing various kind of the researches on this particular thing. And through those researches, what we have found that there is, specifically in West Bengal, there is 22% increase in fire incidents due to the electrical fire safety. So definitely it is very much alarming one. And on that basis, we have found out various causes. What are the main, because whenever we want to take any kind of the strategic action plan, first of all, we have to find out the root causes. So from those researches, we have found out main root causes is definitely faulty electric outlets and the aging appliances. Defective and deteriorated electrical equipment or misapplication or misuse of the electrical equipment. And connection sometimes can become loose over time. Another thing, sometimes plugs are not grounded. So using the ungrounded plugs, this is also another important cause of having the electric short circuit. Sometimes light fixtures are getting overloaded. Another one we have found, sometimes we are going to overlook some important things, that flammable materials are placed near the light fixtures. Extension cord, we are going to misuse the extension cord. And another is, we are also right now in the recent scenario, the usage of the space heaters are going to increase, which is also cause of the short circuit. And last one is the old wiring system. So these are the main. पर सर्वनी मैडम, हम तो हमारे घर में आपके जितना पूरा लिस्ट गिना है, सारी चीजें मौजूद रहती हैं, मतलब आग लगने की पूरी संभावना है। Yes, that's why there is 22% increase. एक्सटेंशन को हम लोग सही से यूज नहीं करते हैं, लूज वायर हमारे घर में होते हैं। And another thing very much important is the recruitment of the trained fire personnel in each and every high risk establishment. That is very much important, because sometimes we are installing the fire extinguisher, but we don't know how to operate it. What kind of the nature of the fire is there, what kind of the building is there, because based on the categorization of the building, the nature of the fire will be going to be varied. So based on that, we have to take strategic decisions. So ठीक है, ये सारी चीजें सर अग्रवाल सर, जब हम बात करते हैं फायर हजार्ड्स की, तो बहुत सारी बार ये देखने में आता है कि आपको सच में आखिरी तक कॉज पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली में लगा है। शॉर्ट सर्किट एक बहुत कॉमन कल्प्रेट है जिसको बोल दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट ही उसका कॉज होता है, या एक्चुअली में आप डिफाइन कैसे करेंगे कि ये है शॉर्ट सर्किट? मतलब टेक्निकल परिभाषा में आप बोल देंगे, लेकिन क्या रूट कॉज वही होता है? मेरे समझ में बहुत इजी है डिटेक्ट करना। यू रिक्वायर एड्रेसेबल फायर डिटेक्टर्स, सो यू कैन इमीडिएटली फाइंड आउट कि आग स्टार्ट कहां से हुई थी। Okay, so I think it's no big deal in today's technological environment that you have to detect from where it starts. But the problem is that it is not compulsory to put the addressable fire detectors. If you got a normal fire detectors, you cannot know from where the fire is. If you install say 200 fire detectors and you got a panel, how can you find out where the fire is starting? So the first thing is that you have to have addressable fire detectors and of a good quality, so that you can locate from where the fire had started. Right. राजेश, आपके उसमें क्या है? क्योंकि देखिए आग लगने के बहुत सारे, क्योंकि यू आर इन द इंडस्ट्री, तार बनाते हैं आप लोग, और तार के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजेस में देखता हूँ, वायर दैट डजंट कैचेस फायर, ये वो तमाम चीजें। हाउ रिस्पॉन्सिबल आर द वायर्स फॉर दिस थिंग? क्या तार उसके पीछे एक बड़ा रीजन होते हैं? आई थिंक उसका आधा जवाब तो मैम ने दे दिया कि बोले ओल्ड वायरिंग एंड फॉल्टी कनेक्शन इज द रीजन। सो थोड़ा मेरा उन्होंने काम आसान कर दिया। सो एंड वी हैव अ वैलिडेटेड आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। बट जस्ट जो आपका जो स्टेटमेंट था कि वायर दैट डोंट कैच फायर, ऐसी कोई
वायर आज तक दुनिया में बनी ही नहीं है जो आग नहीं पकड़ती है. ऑल वायर्स विल कैच फायर इवेंचुअली. द थिंग इज कि अगर आपकी जो वायर है ये क्या टेम्परेचर पे फायर पकड़ती है और क्या वो आग फैलने देती है. तो नॉर्मल पीवीसी वायर है, अगर हम देखें तो नॉर्मल पीवीसी वायर आपका 97% मतलब आग भी जल्दी पकड़ती है और 97% स्मोक एमिट करती है. शॉर्ट सर्किट में जो मृत्यु का जो कारण होता है वो दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द चोकिंग हजार्ड विच रिजल्ट्स फ्रॉम द पॉइजनस स्मोक. तो अगर हम देखें तो इंडिया में आजकल हम उसका रिप्लेसमेंट नॉर्मल पीवीसी का लोग FRLS वायर से कर रहे हैं. FRLS वायर एक्चुअली अगर हम देखें तो FRLS emit 70% स्मोक. तो FRLS फायर इज नथिंग, इज नो बेटर, इट हैज नो वैल्यू एडिशन टू द प्रोजेक्ट और टू द हाउस. द रियल वायर जो हमको इंडिया में यूज करना चाहिए, जो पूरा क्वालिटी कॉन्शियस वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, वो लो स्मोक जीरो हैलोजन वायर है. वो वायर आपको सिर्फ 4% स्मोक एमिट करता है, वो भी नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव, एंड वॉट एवर स्मोक दैट इज एमिटेड इज व्हाइट इन कलर, ताकि फायर रेस्क्यू एफर्ट में आपको ईज होए. तो माई ओनली दिस थिंग वुड बी दैट के एज अ इन आवर प्रोजेक्ट्स हम फायर प्रिवेंशन में हम कैसे ज्यादा फोकस करें. ये मेरे मन में यही प्रिवेंशन वाला सवाल आ रहा था सर. सवाल आपसे कि एक आग लगी, अब वो इलेक्ट्रिकल फायर है या किसी और रीजन से है, हमारे पास बुझाने का तरीका तो एक ही रहता है, वो जो टिपिकल एक सेफ्टी सिस्टम किसी बिल्डिंग के अंदर लगा रहता है. क्या इलेक्ट्रिकल फायर को भी आप वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे किसी दूसरे फायर को करेंगे, या किसी और कॉज से फायर लगा है, या कुछ अंतर होता है दोनों में? इलेक्ट्रिकल फायर वो समझने का कोई ऐसे कोई मैटर नहीं है जो इलेक्ट्रिकल से हुआ है कि दूसरा किसी से हुआ है. लेकिन जब आग लगता है तब सडनली हम लोग को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मेन स्विचेस या सर्किट ब्रेकर को सडनली ऑफ करने का बहुत जरूरी है. ये हम लोग का अभी आजकल क्या हुआ है, देखिए 1950 से पहले वायर का क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी वायर था, लेकिन उस टाइम में आग लगने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम था. आजकल हाई क्वालिटी वायर निकल गया, हाई क्वालिटी इंसुलेशन भी निकल गया, लेकिन रिस्क ही बहुत ज्यादा रह गया क्योंकि मिस प्लानिंग. तो क्या होता, आपको लोड भी बढ़ गया. पहले आपको जैसे एवरेज 30 एम्पेयर का लोड लगते थे, अभी 100 से 200 एम्पेयर का लोड लगता एक एक हाउस में. तो फिर हम लोग का डिमांड भी बढ़ गया, लेकिन उस टाइम काम का क्वालिटी इतना बड़ा नहीं है. बहुत सारा हम लोग पहले देखा था, आज तो बहुत सारा सुधर गया. बहुत सारा बिल्डर लोग या जो लोग बिल्डिंग बनाता है पहले बोलते थे, अरे यार हम तो इतना दिन से कर रहा है तो कुछ नहीं हुआ है, आज तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे करना पड़ेगा. तो हम लोग इतना दिन चलता, हम लोग ने आज का दिन में तो सुधर गया सब कुछ, लेकिन पहले ऐसे हम लोग बहुत सुना है. हम तो 34 इयर्स हम लोग इस ट्रेड में हैं. तो आजकल हम कलकत्ता या गुवाहाटी या झारखंड बहुत जगह हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं. तो क्या चेंजेस आए हम आपसे अभी चेंजेस आ गया. मान लीजिए वो प्रॉपर वायरिंग, प्रॉपर डिजाइन करके वायरिंग करता है, प्रॉपर सर्किट ब्रेकर यूज करता है, प्रॉपर वायर जितना आपको कैपेसिटी का वायर जरूरी है उतना यूज करता है. हाई पावर का जरूरी है, वो लो कैपेसिटी का वायर लगा दिया तो आग तो लगेगा. नहीं, ये इंपॉर्टेंट है मैम. आपकी रिसर्च में क्या ये निकल कर आता है कि देखिए, एक तो आप इक्विपमेंट अच्छे ले आइए, वायर्स अच्छे ले आइए, जो भी रिलेटेड चीजें अच्छी ले आइए, लेकिन उसको लगाने वाला कितना स्किलफुल है, कितने सही तरीके से लगा रहा है. आमतौर पे तो हम घर में देखते हैं कि वो लोकल मैकेनिक आते हैं, 2-3 औजार उनके पास रहते हैं, आधा तार मुंह से काटते हैं, आधा प्लायर से काटते हैं, लगाते हैं, क्या एम्पेयर नापा नहीं नापा हमें तो समझ में आता नहीं है, लगा के चले गए. पता चला कभी ट्रिप हो गया, आपने कहा इसका थोड़ा और आप पावर बढ़ा दो, अब ट्रिप नहीं होगा. इस तरीके से चीजें चलती हैं हमारे यहाँ. क्या वो एक ज्यादा बड़ा रीजन बनता है रादर देन कि आपकी चीजों की क्वालिटी खराब है? To answer this particular question, I should be thankful to CNBC Awaaz Network 18 because they have identified very pertinent theme, a holistic approach. I want to again explain this holistic approach means, see, it is not a responsibility of a single individual.
It is the responsibility of architect. It is the responsibility of the structural designer. It is the responsibility of the electrical engineer. It is the responsibility of the fire consultant. It is the responsibility of the local communities. It is the responsibility of total stakeholders. Proper organizational safety culture should be developed among ourselves. First, we have to find out where are our strengths, where are our weaknesses. Sometimes we are going to overlook some incidences or some activities that we are mistakenly done. So that's why we have to be very much proactive for that purpose. Okay, and one thing I want to mention that, proper inspection, maintenance, monitoring is very much required very frequently. This is number one. Fire risk assessment study we have to do. Fire safety audit, that also annually we have to do. If this overlooks these basic things, then definitely we have to face such kind of the fire incidences repeatedly. जी सर अग्रवाल साहब, ये जब डिजाइन करते हैं या बिल्डिंग का जब आप लेआउट बना रहे होते हैं, उसमें फायर सेफ्टी आज की तारीख में कितना, मतलब उसका एम्फेसिस का परसेंटेज मैं आपसे पूछूं, चाहे आप डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हैं, कितना रहता है लोगों के दिमाग में कि हाँ ये एक बड़ा एस्पेक्ट है? इन जनरल अगर आप देखें तो बहुत कुछ चीजें वेल डिफाइंड है कि आपको फायर सेफ्टी के लिए ये चीज करनी पड़ेगी. It comes from National Building Code, it comes from the WFS observations which you require, which is mandatory for execution of any building. पर ये सब चीजें बेसिक्स हैं. बात आ रही है कि इवेंचुअली फायर तो होती है. In spite of best of the facilities, the best examples are the malls, which are the best equipped buildings to fight the fire, and no developer will neglect any of the recommendation of the WBFS or the National Building Code in the mall. But still there are the most frequent fire takes place in the mall. The second vulnerables are the hotels. And the third is the office. ये तीनों जगह के अंदर में we must try to understand कि fire क्यों लगती है. What are the reasons? One of the very simple way of understanding is this, that कोई भी fire बहुत बड़े रूप में स्टार्ट नहीं होती है. कोई बॉम्बार्डिंग नहीं होती है कि उसका मतलब, वो तो एक अलग बात है, कोई आके मतलब कोई टेररिस्ट अटैक हो गया. The fires origins from in a very small level, and because it is not detected in time, that is the reason it spreads gradually. And normally you'll find that the सुबह में 4 बजे 5 बजे पकड़ में आता है. क्यों? कि जब सब लोग चले जाते हैं ऑफिस से जगह से, तो रात को 10-11 बजे के बाद में वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है. सुबह में 4 या 5 बजे मालूम पड़ता है तो बहुत बड़ा आग लग गया यहाँ पर में, बिकॉज इट इज नॉट डिटेक्टेड. वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल थिंग इज दी फॉल सीलिंग. हमारे यहाँ पर में फॉल सीलिंग के ऊपर की जो वायरिंग है वो बहुत ही निग्लेक्टेड है. आप फायर सेफ्टी ऑडिट करा लीजिए, क्या मिलेगा आपको? ऊपर का तो वायरिंग आप देख नहीं पाएंगे, इट इज ऑलरेडी कंसील्ड ओवर देयर. सो आई थिंक तो फिर उसका मतलब फॉल सीलिंग तो हम देखते हैं घरों में भी होती है, ऑफिसेस में भी होती है, तो क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर डिजाइन है जो फॉलो करना होता है, वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, या फिर वो फॉल सीलिंग का कंसेप्ट ही खराब है? शॉर्ट सर्किट मेरे समझ में तो सिर्फ एक कारण से लगती है. रात को कोई इतना इलेक्ट्रिकल लोड नहीं होता है, इतनी वो नहीं चल रही होती कि वायर गर्म हो जाए. मेरे समझ में ये जहां ये ओरिजिन होती है फ्रॉम द जॉइंट्स, ओके, द इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स. अब क्या हो रहा है कि वी आर यूजिंग ऑल कंसील्ड रिसर्च टाइप इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फॉर द लाइट, और उसके ऊपर में एक नेकेड जॉइंट होता है तार का. सिमिलरली देयर आर सो मेनी जंक्शंस व्हिच आर रनिंग ओवर द फॉल सीलिंग. फॉर दिस देयर इज नो कंट्रोल. You know, as Madam rightly said that, you know, you require good quality manpower or some kind of a responsibility, some kind of a, you know, the assignment of a responsibility in terms of a proper documentation before the false ceiling is covered, that the whole thing is executed in the right manner. Similarly, there are so many other areas. For example, if at all, if your MCB works well, then the short circuit can be, you know, detected very fast. Right. It is very simple. Why this is failing? We need to understand from, you know, engineering point of view,
why all these faults are occurring, and eventually it is taking a bigger shape in terms of a big fire. जी, तो सर क्या आपको क्या लगता है, क्या रीजन है उसके पीछे? मतलब reason जब ऐसे कोड है ऑफ कि- कंडक्ट भी है, नेशनल कोड भी है सेफ्टी का, सब कुछ है, अपनी लेकिन- जगह पर है। सर सब कुछ तो है, लेकिन सर जैसे बोल दिया, तो मैडम भी बोल दिया, अब प्रॉपर वायरिंग नहीं कराइएगा तो फिर ऐसे चलता रहेगा। आपको प्रॉपर वायरिंग कराना चाहिए, ये प्रॉपर लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन से काम कराना चाहिए, तो ये रिड्यूस हो सकता है। ये कभी बंद नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस हो सकता है। हाँ, मतलब आप थोड़ा अगर समझा के बताएं कि कैसे। मान लीजिए हम लोग अच्छा वाला डिजाइन बना दिया, जेपी साहब जैसे बोला, हम लोग जब डिजाइन बना था वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल डिजाइन हम लोग बना दिया, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होगा तो हैजर्ड रह जाएगा। अब वर्कमैनशिप अच्छा करके करना पड़ेगा आपको। ये फॉल्सिंग का ऊपर में जो हैजर्ड होता है वो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, हीट से होता है या वो जॉइंट से भी होता है। जेपी साहब जैसे बोला था, जॉइंट से मैक्सिमम टाइम होता है। क्या होता है ना, वो अच्छा वाला इलेक्ट्रिशियन आपको काम नहीं किया तो क्या करता है, वो वायर छोटा हो गया तो वो ज्वाइन करके टेप मार के वो छोड़ दिया। राजेश अपने